इसे जितना ही समझाओ उतना ही मचलता है। ताता तेरे चरणों रग धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ तकदीर बदल जाए। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। शुक्ला जी हमारे 1000 बरस उनकी उम्र हो, बहुत लाख हमें नानी करके मानते। हमने वचन दिया था कि 6 नाती हमारे यहाँ साथ में आओ। आस्था इन मरीजों की मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। बढ़ती उम्र और उसके साथ लगने वाली बीमारियों ने इनके शरीर की सीमाएं तय कर दी हैं। ऐसे में एक मेडिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल की देखरेख इनके लिए बहुत जरूरी है। अभी आएगा, बस थोड़ी देर में आएगा। आपकी बहू भी आएगी आपके। पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नहीं, सब बर्दाश्त करिए, सब ठीक हो जाएगा। आस्था हॉस्पिटल में हर तरीके के पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं। अब ये हमारे एक पेशेंट है मिस्टर किहन कौशल, ये हमारे यहाँ 22 मई को यहाँ एडमिट हुए हैं। इनको GVM है, जो ब्रेन में ट्यूमर होता है। ये जब से हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं इनको ये अनकॉन्शियस हैं। इनको हमें हर तरीके की सुविधा देनी पड़ती है कि पेशेंट को बेड शोर ना हो। पेशेंट को हमने बेड पे एयर मैट्रेस पे ले रखा है, जिससे इनको हर 2-2 घंटे बाद हम की करवट कराते हैं, राइस टू फीडिंग कराते हैं। निकालिए। Geriatric medical care is a subspecialty to internal medicine or a super specialty to internal medicine has not developed in India. If there is a patient who, as you say, fails to all these 3 modalities of treatment, in cancer we often employ multimodality treatment, sequential multimodality treatment, one after another. Yet, if we are pushed against the wall and all what we have in our arsenal, all our armamentarium is exhausted and nothing is working, then of course we resort to what is known as a palliative care. And the palliative care in cancer really means that you have to make the patient symptom free. And the most distressing symptom is pain. यहाँ के नवीनतम संसाधनों और सेवाओं की बदौलत मरीजों की हर जरूरत पूरी होती है। Astha right now is providing several services. Our basic service with which we started is a health membership that we are giving to senior citizens, which anybody can avail just by paying 3 rupees 30 paisa per day, which comes to 100 rupees a month. By paying this money, that elderly is secured. He gets a type of medical insurance. He gets an access to 2 free medical helplines. He gets an access to medical OPD, several other facilities like need at the time of emergency. He gets an ambulance facility, and we don't charge anything for any of these things to those who are our members. Then if a member is hospitalized, then he has to pay subsidized user charges. आस्था का एक सफल प्रयोग रहा उसकी आउटरीच की सेवा। तकरीबन 150 परिवार आज इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इस सेवा के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार एक जानकार और जिम्मेदार आस्था कर्मचारी मरीज के घर में ही उसकी देखभाल के लिए हर समय उपस्थित रहता है। So here we were getting several inquiries that many patients in elderly age group who suffered with acute medical illnesses like stroke, fracture, they were treated at some big hospitals like SGPGI or Medical College or several other private hospitals. But when they were discharged home, they were still not in a position when they can perform their activities of daily living on their own, like going to the toilet and doing their own needs. So the need arose that they wanted a caregiver who would compensate the job what their children would have done for them. So that is how we created this facility called Outreach Facility, where we train this staff and we depute this staff to the deceased person till the time they want that facility. इस तरह से मरीज अपने परिवार के प्यार से भी वंचित नहीं रहते और उनकी सही देखरेख भी हो जाती है।
क्योंकि मरीज की हर छोटी बड़ी जरूरत आउटरीच कर्मचारी की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो हम तो लाचार अपने काम को ही हैं, इनको उठाना बिठाना हमारे बस का ही नहीं रहा। तो वो जो हमारे लिए समझ लिए इतना दुखदाई था एक माँ के लिए, जिस बच्चे को हमने सब कुछ अपने हाथ से किया और हम अब कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जगह ये बिल्कुल समझिए माँ की जैसी मिल गई। अक्सर ये देखा गया है कि कर्मचारी और मरीज के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो जाता है। ये रिश्ता ही तो है जो इन दोनों के बीच के अच्छे तालमेल का कारण है। आपको पहचानते हैं? हाँ जी, हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। आंटी चली भी जाए कहीं तो हमारे सारे छोटे हम रख लेंगे। हाँ, हमसे बहुत घुल मिल गए हैं। अगर जो छुट्टी हो जाती है, बीमार मार पड़ गए, तो फिर वहाँ आस्था से दूसरी वर्कर आ जाती है। वृद्धावस्था में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की कुशलता ही जरूरी नहीं, ये जीवन का वो पड़ाव है जिसमें मानसिक पंगुता सबसे ज्यादा घर करती है। Dadu, who says you are old? Because I am suffering in my bones, I know. So we all do. No, it's not that. At this age, please, God forgive. भगवान आपको ये कष्ट न दे बस। दादू दिल से जवान होते हैं ना? नहीं, वो दिल तो खत्म हो गया। अरे इतना बढ़िया। I am 83, you know. तो क्या हुआ दादू? दादू इसको ना इसके बाल बहुत झड़ते हैं, इसको प्लीज बताइए। That's a good question. फोटो खींचे। All the best. हाइपोप्रोटीनीमिया होने से बाल झड़ते हैं। ये होता क्या दादू? ब्लड में प्रोटीन्स की कमी। इलाज? अंडे। हल्के फुल्के पल अपने अकेलेपन से लड़ने की हिम्मत देते हैं। मरीजों का मनोरंजन करते ये युवा आस्था के कार्यों से प्रोत्साहित होकर उनके मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। चेहरों की ये मुस्कुराहट और आंखों में ये संतोष इन युवाओं के लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। यहाँ पे आप अगर लोगों से बात करें, they have an ocean of knowledge. There is one from State Bank of India. There is a professor from Hindu University. I've introduced जो बहुत देर नहीं बैठ पाए. They have ocean of knowledge. और हम कितने रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, भटकते फिरते हैं चीजों के लिए। ये अवस्था, ये समय सबके जीवन में आता है। कुछ यादें, कुछ पल वो खुशी दे जाते हैं जो बेशुमार दौलत भी नहीं खरीद सकती। दौलत और शान और शौकत इनके लिए वो मायने नहीं रखती जितना कि दो मीठे बोल और थोड़ा सा अपनापन। एक आया है मेरे लिए आसमान में परी बना के, फूल बना के, जो कुछ चाहिए वो बना के उतारा। ये also A1. That's right. He is A1. So my objective is to create an institution in my lifetime, which may be say 1,000-bedded institute or maybe a bigger institute, where right from the smallest thing that an old man may require, that may be his janeu, or that may be a mala for him, or that may be a wheelchair or a walker for him, to the highest quality of medical care, that may be an organ transplant, cardiac transplant, renal transplant, liver transplant. So an institution where if somebody comes, he can thrive for the best facility of the world that is existent on the earth, to provide such a facility to the senior citizens of our country. This is what I dream. और मेरा यही मकसद है, यही इस पिक्चर का भी मकसद है कि हम सब मिल कर के मजबूत भारत बनाएं।
मजबूत भारत बनाने यही हमारा धर्म है। आखिर मानव जीवन की जड़ें प्यार और विश्वास पर ही टिकी हैं। इसी प्यार और विश्वास का दूसरा नाम है आस्था। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, हाथ से छूटे घर जैसा एक घर निकला है, बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छनकर, बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छनकर, आती आवाजों पर फिर से दम निकला है।